भारतीय औषधि महानियंत्रक की जो कोरोना के टीकों को लेकर आज बैठक होनी थी, बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे आपको जोड़ते हैं उनके पास। To conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further Phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of Phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over.
तो कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई की प्रेस वार्ता संबोधित कर रहे थे भारतीय औषधि महानिदेशक। उन्होंने एक जानकारी दी कि कोवैक्सीन को हरी झंडी मिल चुकी है, 2 वैक्सीन को अनुमति दे दी चुकी है। विशेष समिति ने 2 वैक्सीन के बारे में बताया। 2 वैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी गई है। तो बता दें आपको, देश को नए साल की शुरुआत में 2 वैक्सीन मिली, जिसकी डीसीजीआई से अनुमति मिलनी बाकी थी और डीसीजीआई की तरफ से भी इन दोनों वैक्सीन को अनुमति मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है और अब सभी को टीकाकरण लगने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत देश में की जाएगी, हर राज्य में की जाएगी। विशेषज्ञ समिति ने 2 वैक्सीन के बारे में जानकारी दी और बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों वैक्सीन देश के लिए, ताकि कोरोना महामारी से निजात मिल सके। और ऐसे में दोनों टीकों पर यह ऐलान कर दिया गया है, दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, दोनों वैक्सीन को हरी झंडी डीसीजीआई की तरफ से भी मिल चुकी है। बता दें आपको, जिस तरीके से भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल के लिए मंजूरी डीसीजीआई की तरफ से भी दे दी गई है, वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को भी डीसीजीआई ने अनुमति दे दी है, हरी झंडी दे दी है। अब इसके साथ ही पूरे देश में इन दोनों वैक्सीन का टीकाकरण का जो शुरुआत है, वो प्रक्रिया है, वो शुरू की जाएगी। अब दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, यह कहना है डीसीजीआई का कि दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं, कोई भी नुकसान इसको लेकर नहीं है और इसका ऐलान कर चुके हैं कि दोनों ही वैक्सीन को अब पूरे देश में हर एक व्यक्ति को लगाया जाएगा ताकि कोरोना महामारी से निजात मिल सके। तो बता दें कि डीसीजीआई की तरफ से ही इंतजार था दोनों वैक्सीन पर अनुमति मिलने का। ऐसे में डीसीजीआई की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दे दी गई है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को अनुमति दे दी जा चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब दोनों ही वैक्सीन भारत में, देश में सभी लोगों को टीकाकरण करके लगाई जाएगी। बताया कि दोनों ही वैक्सीन काफ़ी सुरक्षित हैं और दोनों ही वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें आपको, इन दोनों ही वैक्सीन का सार्वजनिक इस्तेमाल करने की जानकारी दे दी गई है। और फोन लाइन पर संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, डीसीजीआई की तरफ से ही अनुमति मिलना बाकी था दोनों वैक्सीन का, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, ऐसे में दोनों को ही अनुमति अब मिल गई है, तो कितना मायने रहता है, क्योंकि पूरे देश में इसका इंतजार था। बिल्कुल रेनू, 2020 का जो दौर गया है कोरोना का, इसको बहुत मतलब दर्दनाक क्षण माना जाएगा इस साल को जाते हुए को। लेकिन इस जो वैक्सीन है, इन वैक्सीनों की उम्मीद बहुत लंबे समय से थी। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ अन्य तमाम तरीके के जो संस्थाएं हैं वो लगी हुई थी इसमें, और तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म था इसको लेकर। लेकिन अब इसको हरी झंडी मिलने के बाद निश्चित तौर पर देश की जनता को, क्या पूरी दुनिया के लोगों को अब कोरोना से मुक्ति मिलने की एक आस जगी है और लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये साल 2021 की शुरुआत में कि भारत देश ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जो महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, दुनिया में इसका प्रकोप था, वहां भारत में दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलना काफी राहत की खबर सामने निकल कर आई है। बिल्कुल, 130 करोड़ की आबादी वाला देश है हिंदुस्तान, और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उस सिस्टम को बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में एक सिस्टम खड़ा किया और हर जिले में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नोडल ऑफिसर जो हैं उनका एक सिस्टम पूरा बन के तैयार है। और इसको समय समय पर इसका एम्स के जो डॉक्टर हैं, बाकी और जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो इसका सब सारी चीजें देख रहे थे। इसका ट्रायल चल रहा था बड़े लंबे समय से, बीच बीच में बहुत सारी सूचनाएं आती थी, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था। अब इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि होने के बाद जनता को राहत मिलेगी और इसका निश्चित तौर पे ये आने वाला जो दौर है, क्योंकि 2021 की जैसी शुरुआत हुई और ब्रिटेन का एक नया जो वायरस था, ब्रिटेन से आने वाला जो था, उसने निश्चित तौर पे चिंताएं जो है वो बढ़ा दी थी। और वैक्सीन आने के बाद अब कहीं ना कहीं हमें एक राहत की उम्मीद जगी है। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि बीते दिन शनिवार की बात करें तो देश के कम से कम 19 राज्यों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन को किया गया था, जो काफी सफल रहा है। अब इंतजार था आज के दिन का, आज अनुमति दोनों वैक्सीन को मिल गई है, तो अब बस शुरुआत जो होगी वो होगी सभी लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो सके, सभी को टीकाकरण लग सके। हाँ, असेंशियल सर्विस में जितने लोग थे
उसको लेकर भी, क्योंकि जब तक ये ड्राई रन पूरा नहीं हुआ तब तक उन कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों के बीच भी एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपने आप को बेहतर मान सकते थे, पर लेकिन जब तक ट्रायल किसी चीज का सफल ना हो जाए तब तक लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा होना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो ड्राई रन हुआ है, उस ड्राई रन के जो परिणाम आए हैं, सकारात्मक परिणाम जो आए हैं, उसको लेकर बहुत बेहतर है। और अब निश्चित तौर पर जनता को भी, आम लोगों को भी वैक्सीन के टीके सही तरह से लगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है क्योंकि अब डीसीजीआई ने भी अनुमति दोनों वैक्सीन को दे दी है, ये भी बोल दिया है कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। लेकिन अगर हम विपक्ष के कुछ नेताओं की बात करते हैं तो वो अभी भी ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है और वो ये टीका नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से टीका है। लेकिन ये तो मानवता के भले के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, उसको अब डीसीजीआई की तरफ से अनुमति मिलना, दोनों वैक्सीन को सुरक्षित बताना, क्या लग रहा है आपको, क्या आगे देखने को मिलेगा? विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है? विपक्ष के पास कोई इसका पैरामीटर नहीं है, ना विपक्ष डॉक्टर है, ना उनके पास कोई विशेषज्ञ है। बयान दे देना राजनीतिक गलियानों में कहीं भी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल जमीन पर जाकर देखें तो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो हमारा जो विपक्ष है, जुबान नेताओं की हल्की हो गई है। किसी भी बात को कहीं भी कह देना ये बड़ा विचारणीय होता है, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को, जिस तरीके से लगातार विपक्ष कमजोर हो रहा है, अविश्वास की भावना उसके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि ये मानवता से जुड़ी हुई मसला है और एक संस्था है, उस संस्था ने इसका ट्रायल कराया है। ट्रायल कराने के बाद क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जब इसकी अनुमति दे दी है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए और अपने आप को सियासत से अलग करते हुए और एक सद्भावना का इसमें रुख दिखाना चाहिए ताकि जनता के बीच में उनका विश्वास कायम हो। नहीं होगा तो फिर उनके परिणाम दुष्कर होंगे। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है साल की शुरुआत में। किसको श्रेय देंगे आप? क्योंकि वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की, पूरा साल भर वो इस वैक्सीन को बनाने में मेहनत कर रहे थे, डॉक्टर्स दिन रात लगे थे मरीजों की सेवा में। ऐसे में साल की शुरुआत में ये वैक्सीन का आना देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसका श्रेय निश्चित तौर पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग इसमें काम करते रहे हैं और एक सिस्टम जो है, इसमें किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाना जो है वो कहने को दुष्कर होगा। एक टीम होती है, टीम वर्क होता है और निश्चित तौर पर इसको भारत सरकार की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और क्योंकि जो हालात और परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों से निकल के 2 गज दूरी और तमाम तरह के हथकंडे, तमाम तरह के प्रतिबंध लोगों पर लगाए गए, उस दर्द को जो झेला है, निश्चित तौर पर एसेंशियल सर्विस में जो लोग लगे रहे हैं वो इसमें श्रेय उनको जाना चाहिए और वही इसमें बधाई के पात्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका हमारे साथ खबर बातचीत करने के लिए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि साल की शुरुआत 2021 में पूरे देश को मिली है। देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। दोनों वैक्सीनों को अनुमति डीसीजीआई की तरफ से मिल चुकी है, कोविड शील्ड को और कोवैक्सीन को, दोनों ही वैक्सीन को अनुमति डीसीजीआई ने दे दी है। इस पर ही सबकी निगाहें टिकी थी और डीसीजीआई की तरफ से भी अनुमति मिलने के बाद पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये मान सकते हैं। हम वैज्ञानिकों को हम नमन करते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके ये जो वैक्सीन है, दोनों ही वैक्सीनों को बनाया था और दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं। अब जल्द ही सभी को टीकाकरण किया जाएगा। सभी को जो इतनी बड़ी महामारी पूरे दुनिया में प्रकोप फैला रही थी, उससे निजात अब बहुत जल्द मिल जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश के लिए हम कह सकते हैं साल की शुरुआत में है, क्योंकि वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। भारत देश के वैज्ञानिक, तमाम वैज्ञानिक इसमें लगे हुए थे और ऐसे में उनकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही सीरम भारत बायोटेक को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही जो कोवैक्सीन है उसको भी मंजूरी मिल गई है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड को मंजूरी दे दी गई है। दोनों ही जो वैक्सीन है सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। ये डीसीजीआई ने ऐलान कर दिया है, हरी झंडी दोनों वैक्सीन को दे दी गई है। कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश के लिए हम कह सकते हैं। तमाम वैज्ञानिक जो दिन रात मेहनत करके इन दोनों ही वैक्सीन का निर्माण कर रहे थे, उन सभी को नमन, क्योंकि उनकी मेहनत ही है जो आज ये रंग लाई है और उनकी मेहनत का ही परिणाम होगा कि आने वाले समय में जो महामारी है कोरोना की, उससे निजात सभी लोगों को मिल जाएगा। और जो एक डर अभी तक बना हुआ है, पूरा साल 2020 का कोरोना महामारी के प्रकोप से गया था, वो जरूर खत्म होते हुए देखा जाएगा। और फोन लाइन पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रेनू। अतुल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी खुशखबरी देश के लिए है, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन को डीसीजीआई ने अनुमति दे दी है। तो बहुत बड़ी राहत की खबर हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब जल्द ही ये माना जाएगा कि कोविड से बीमारियां थी, जो नुकसान हो रहा था, वो अब कहीं हद तक कम होगा।
बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। नए साल खुशियां लेकर आया लोगों के लिए, एक राहत जी। की खबर है। और तीसरे दिन ही 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल चुकी है, कोवैक्सीन कैडिला की जो ये है, और इससे पहले कोविशील्ड को मंजूरी दी गई है। और सरकार ने पूरे व्यापक स्तर पर इसके लिए तैयारियां की हैं कि जो कोरोना योद्धा हैं और खासतौर से जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं, कोरोना वायरस है, उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाए। 3 करोड़ इंजेक्शन लगाने की तैयारियां भी सरकार ने पूरी कर ली हैं, जो पहले चरण में लगेंगी। जी। और कुल मिलाकर जो 80-85 करोड़ वैक्सीन की जरूरत जताई जा रही है, वो जल्द पूरी हो जाएगी, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। जी। और विशेषज्ञों का और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो भारत है वो विदेशों को निर्यात भी कर सकता है जी। वैक्सीन को, क्योंकि भारत की वैक्सीन बहुत सस्ती है और बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। रेनू जी बिल्कुल अतुल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे देश के लिए। उन वैज्ञानिकों को नमन जरूर करना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इस वैक्सीन को पूरा साल मेहनत करी और आखिरकार साल की शुरुआत में ही वैक्सीन को हरी झंडी मिलना काफी बड़ी उपलब्धि देश के लिए हम मान सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस वैक्सीन को तैयार किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन है इसकी कीमत बहुत कम है। जो दूसरी जो दवाइयां बनी है विदेशों के अंदर, जैसे फाइजर कंपनी की जो दवाई है, उसके मुकाबले बहुत, इसको कहें तो एक तरीके से नगण्य इसकी कीमत है। और साथ में इसको जो स्टोर करना है वो भी काफी आसान है। एक जो सामान्य डिग्री 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर है, उस पर इसको स्टोर किया जा सकता है, जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है। जो दूसरी विदेशों में वैक्सीन बनी है उसको -70 डिग्री पर स्टोर करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और वैज्ञानिकों के लिए। और वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम से इसको तैयार किया है और भारत का परचम जो है पूरे विश्व के अंदर लहराया है, ये हम ये कह सकते हैं। रेनू जी बिल्कुल अतुल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं साल की शुरुआत में। अब सभी को जल्द ही निजात मिलेगी कोरोना महामारी से। सबसे पहले जो वैक्सीन लगनी है वो लगनी है कोरोना वॉलंटियर्स को, उसके बाद सभी देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी हरी झंडी मिलने को लेकर। DCGI की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। आपको क्या लग रहा है? विपक्ष के कई नेता ऐसी बातचीत कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। क्या वो इस वैक्सीन को लगाएंगे? क्योंकि DCGI ने साफ तौर पर कह दिया है कि वैक्सीन पूरी तरफ से सुरक्षित है। देखिए, जो विपक्ष के लोग नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जिस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र से मामला जुड़ा है और इससे लाखों करोड़ों लोगों की जान पर जो एक खतरा मंडरा रहा था वो दूर हो गया है। और ऐसी जो बयानबाजी है वो अनुचित है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से इस वैक्सीन को तैयार किया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वैक्सीन खरी उतरी है। और सरकार ने पूरी इसके लिए तैयारी की है कि किस तरीके से लोगों को लगेंगे, कि बुजुर्गों को पहले लगेगा, जो कोरोना से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद महिलाओं को लगेंगे। तो ऐसे पूरे के पूरे सरकार इसको तैयार करने में जुटी है, इसकी खाका की किस तरीके से इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। और इसमें तो सीधी सी बात यह है कि जिसको आवश्यकता होगी वो लगवाएगा, जिसको सरकार चाहेगी उसको लगाएगी। और कोई व्यक्ति अगर निजी तौर पर उसको ना लगवाना चाहे तो एक अलग बात हो सकती है। अन्यथा मेरा ये मानना है कि जो इस तरह की जो चीजें हैं, जो देश इससे जुड़ी चीजें हैं और समाज से जुड़ी चीजें, उसके अंदर राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। रेनू जी बिल्कुल अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खबर बातचीत करने के लिए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है साल की शुरुआत में। दोनों वैक्सीन को DCGI ने अनुमति दे दी, हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्द कोरोना महामारी से एक राहत, बड़ी खबर सामने देखने को मिलेगी।